बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा सबसोनिक एंड सुपरसोनिक नोजल डिजाइन। वॉल्यूम इज ओके, शुड आई इंक्रीज इट? ओके, वॉल्यूम here. So today our objective is to describe the use of air intakes, diffusers and nozzles in aircraft engines, and draw the shapes of nozzles and diffusers for subsonic and supersonic flow, analysis of operating parameters of diffusers and nozzles, solution of problems and examples about nozzles and diffusers will be done after completion of this topic. So let's start with use of air intakes, diffusers and nozzles in the aircraft. We have learned about aircraft types, and every aircraft has an intake duct with nozzles and diffusers after compressor, and discharge nozzles or jet nozzles at the exhaust pipe. Now, air intake inlets are separately defined here for subsonic aircraft, for supersonic aircraft, and then there is a diffuser section. After intake duct, there is a diffuser section to increase the pressure before compressor or after the compressor before going to combustion chamber. For subsonic aircraft, the inlet is a duct which is required to ensure smooth airflow into the engine despite air approaching the inlet from directions other than straight ahead. So if this happens when the aircraft is standing at the runway and it is just about engine has been started but it's not flying yet, takeoff is not taking place yet. So in that stationary condition, air enters to the intake duct from all directions. So these intake ducts are designed such that air enters in within the tube, not from all around, in line with the flight. Now this occurs on the ground from around the wind मैंने बता दिया, और जब aircraft उड़ भी रहा है, when it is during the flight, aircraft pitch and yaw motions, aircraft को ऊपर नीचे यूं टर्न करता है, यूं उड़ते वक्त, उतरते वक्त यूं करता है, इसको हम पिच कहते हैं, और यूं राइट और लेफ्ट टर्न करता है, इसको याव कहते हैं. तो इस सूरत में भी वो डायरेक्शन को कंट्रोल होता है कि एयर सीधी स्ट्रेट लाइन में इनसाइड द intake duct enter होनी चाहिए. The duct length is minimized to reduce the drag and weight. This duct should be not very large, very heavy. Air enters the compressors at about half the speed of sound. So as flight speeds lower than this, the flow will be accelerated along the inlet, and higher flight speeds it will slow down. So subsonic के लिए ये requirement है कि इसमें जो है इनलेट पे डिफ्यूजर यानी इनटेक में अगर लो स्पीड है तो एयर स्पीड इंक्रीज करता है, और हाई स्पीड एयर स्पीड को डिक्रीज करता है. Thus the internal profile of the inlet has to be accommodate both accelerating and diffusing flow. Converging diverging होनी चाहिए without undue losses. Converging का काम फ्लो सबसोनिक फ्लो को एक्सेलरेट करना है, डाइवर्जिंग का काम सबसोनिक फ्लो को डिसेलरेट करना है. So for supersonic aircraft, the inlet has features such as cones and ramps to produce the most efficient series.
two more admissions. I'm admitting two more. Now, this is disturbing. People join late and I am disturbing. They're disturbing the lectures. Now, for supersonic flow, the inlet has features such as cones and ramps inside to produce the most efficient series of shock waves when which are formed when supersonic flow slows down. So supersonic flow को slow down करने के लिए intake में converging diverging type की shape के channels बनाए जाते हैं, ducts बनाई जाती है और उसको हम कहते हैं, और उसकी shape इस तरह बनाई जाती है कि shock जो है duct से बाहर हो, shock duct से बाहर हो, और ये shock जो है ना ये compressible flow में पढ़ाया जाता है, इसको aerodynamics भी कहते हैं, इसको gas dynamics भी कहते हैं, एक अलग सब्जेक्ट है, NED के BSc मैकेनिकल सिलेबस में है, UET के सिलेबस में अलग से नहीं है। सो ये थर्मोडायनेमिक्स का हिस्सा होता है, लेकिन सब कुछ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाना बड़ा मुश्किल है। गैस टरबाइन भी पढ़ाए, गैस डायनेमिक्स भी पढ़ाए, एरोडायनेमिक्स भी इससे पढ़ाए, फ्लूइड मैकेनिक्स भी पढ़ाए, तो ये फिर थर्मोडायनेमिक्स बड़ी लंबी हो जाती है। लिहाजा ये अलग अलग सब्जेक्ट्स क्रिएट, फ्लूइड मैकेनिक्स के 2 सब्जेक्ट्स होते हैं और एरोडायनेमिक्स का एक सब्जेक्ट अलग से होता है, गैस डायनेमिक्स का, और कंप्रेसिबल फ्लूइड फ्लूइड का फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स अलग अलग होता है। नाउ डिफ्यूजर सेक्शन में क्या होता है, द डिफ्यूजर slows down the compressor delivery air to reduce the flow losses in the combustor. Combustor में अगर high speed flow enter होगा supersonic flow में या subsonic flow में, तो flame stability का मसला होगा, flame बुझ सकता है और वो combustion chamber ऑफ हो सकता है, इसलिए वहाँ कंट्रोल करना, उसके लिए प्रेशर इंक्रीज किया जाता है, वेलोसिटी कम की जाती है। Now slower, उसके लिए डिफ्यूजर चाहिए। Slower air is also required to help stabilize the combustion flame, and higher static pressure improves the combustion efficiency. Static pressure combustion chamber में बढ़ जाता है, efficiency भी बढ़ जाती है, speed भी कम हो जाती है। तो afterburner एक चीज है जो discharge में लगाई जाती है, इसको आप गैस टरबाइन इंजन में कहें तो उसको रीहीट साइकिल भी बनाया जाता है पावर टरबाइन्स में, तो वो दैट इज इन एयरक्राफ्ट उसको रीहीट कहते हैं, और ब्रिटिश में एयरक्राफ्ट के लिए भी रीहीट कहते हैं, लेकिन यूजुअली अमेरिका में इसको आफ्टर बर्नर कहते हैं। आफ्टर बर्नर इसलिए कहते हैं कंबशन चैम्बर के बाद फिर दोबारा टरबाइन में एक्सपेंशन होने के बाद फिर दोबारा फ्लेम यानी फ्यूल बर्न किया जाता है, तो जिससे उसको दोबारा रीहीट किया जाता है, इसको आप रीहीट भी कह सकते हैं और आफ्टर बर्नर भी कह सकते हैं। नाउ इट प्रोड्यूसेस एक्स्ट्रा थ्रस्ट बाय बर्निंग फ्यूल इन द जेट पाइप, जेट के नोजल से पहले। नाउ दिस रीहीटिंग ऑफ टरबाइन एग्जॉस्ट राइजेस द प्रोपेलिंग नोजल entry temperature and exhaust velocity. The nozzle area is increased to accommodate the higher specific volume of the exhaust gases. Higher the temperature, higher the volume. Now this maintains the same airflow. Airflow constant रहेगी तो volume बढ़ेगा temperature बढ़ने से. So volume तो constant रखना है, volume कम ज़्यादा होगा तो engine thrust में फर्क आएगा, और volume को under steady state condition constant volume flow rate रखना है, और इस बुनियाद पे हम jet nozzle को ज़रा बड़ा बनाना। Now this maintains the same airflow through the engine to ensure no change in its operating characteristics. Now एग्जॉस्ट नोजल की बारी है आखिर में, और जो थ्रस्ट प्रोवाइड करता है इंजन को, जो आगे की तरफ पुश करता है हवाई जहाज को फ्लाइट के दौरान, तो टरबाइन एग्जॉस्ट गैसेस पास थ्रू द propelling nozzle to produce a high velocity jet. The nozzle is usually converted with a convergent with a fixed flow. Subsonic के लिए convergent nozzle होता है, supersonic के लिए convergent divergent होता है। तो supersonic nozzle for high nozzle pressure ratios, the pressure ratio बहुत ज़्यादा हो, nozzle entry pressure और ambient pressure में जब बहुत ज़्यादा फर्क हो, तो convergent divergent nozzle यूज करते हैं। इसका दूसरा नाम de-Leval nozzle भी है। Now the expansion to atmospheric pressure and supersonic gas velocity continues downstream of the throat and produces more thrust. So यानी downstream exhaust के वक्त
इसमें शॉक वेव क्रिएट हो सकती हैं जो धमाके करती हैं, और जिसके उड़ने से, जिसके निकलने से जब सुपरसोनिक खासकर फाइटर जहाज गुजरते हैं किसी आबादी के ऊपर से, तो उस आबादी में धमाके होते हैं जिससे लोगों में दहशत फैलती है, खौफ फैलता है और दरवाजे खिड़कियां भी टूटती हैं। ना गैर जेट यानी कि पैसेंजर शिप में इसको नहीं लगाया जाता, क्योंकि पैसेंजर शिप्स के पैसेंजर एयरक्राफ्ट के जो एयरपोर्ट्स हैं वो आबादी के अंदर होते हैं, और वो उसको इस तरह फिर आबादी के आसपास, एयरपोर्ट के आसपास जो रहने वाले लोग हैं वो तो कभी सो नहीं सकते। Now, shapes of nozzles and diffusers for subsonic and supersonic flow. Shape of a subsonic nozzle is like this. It is converging. Area in the direction of flow is continuously decreasing. So V1 is the inlet velocity, V2 is the outlet velocity. ये याद रखेंगे V1 और V2 यहाँ इसलिए आ रहा है कि ये किसी और बुक से है, और ये बुक मेरे ख्याल में या SM या की है, तो या कोई और, हाँ SM की लग रही है। तो V1 is actually C1. आपकी बुक में इसको C कहेंगे, वेलोसिटी को C कहा गया है, क्योंकि V वॉल्यूम के लिए भी यूज होता है। तो बहुत से आथर्स इत्तेफाक नहीं करते कि वेलोसिटी को भी V लिखा जाए, वॉल्यूम को भी V लिखा जाए। तो वेलोसिटी और वॉल्यूम दोनों V से शुरू होते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसको चलाते हैं V को भी चलाते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक में इसको C लिखा गया। C is the velocity, C1, C2. So C2 is less than C2 is greater than C1. इनलेट पे जो वेलोसिटी है वो आउटलेट से कम होती है और वो वेलोसिटी इंक्रीज होती है। प्रेशर आउटलेट का जो हमेशा कम होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है कन्वर्जिंग नोजल से पास होते वक्त अगर इनलेट पे सबसोनिक स्पीड है। डेंसिटी भी कम होती है आउटलेट पे और टेम्परेचर भी कम होता है आउटलेट। सो शेप ऑफ ए सबसोनिक डिफ्यूजर, डिफ्यूजर अगर फ्लो सबसोनिक है, V1 अगर सबसोनिक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड से कम है, तो उसकी शेप इस तरह होगी डाइवर्जिंग। इसको हम डाइवर्जिंग को पाइप को हम डिफ्यूजर कहते हैं। तो इसमें इनलेट वेलोसिटी जो है आउटलेट से ज्यादा होती है। तो डाइवर्जिंग ज्यादा होता है, वो सबसोनिक हो या सुपरसोनिक, लेकिन सबसोनिक डिफ्यूजर इस शेप का होगा, सुपरसोनिक डिफ्यूजर इसकी उल्टी शेप का होगा, यानी कन्वर्जिंग हो। अगर इनलेट पे वेलोसिटी सुपरसोनिक कर दी जाए तो उसकी ये शेप होगी जो नीचे आ रही है, शेप ऑफ सुपरसोनिक। ये नोजल है और डिफ्यूजर की ये शेप। सुपरसोनिक ये कन्वर्जिंग नोजल है और सुपरसोनिक ये आप देख रहे हैं सुपरसोनिक का जो डाइवर्जिंग पार्ट है वो सुपरसोनिक नोजल के इनलेट नंबर, यानी कि सुपरसोनिक क्या नोजल को तो वेलोसिटी इंक्रीज करता है, लेकिन यहाँ ये डाइवर्जेंट नोजल है, ये सुपरसोनिक डिफ्यूजर हो जाएगा। नाउ शेप ऑफ सबसोनिक डिफ्यूजर डाइवर्जिंग हो गई, शेप ऑफ सुपरसोनिक डिफ्यूजर नोजल डाइवर्जिंग हो, शेप ऑफ डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट नोजल है इनलेट पे, ये सबसोनिक। ये डाइवर्जेंट नोजल नहीं, एक्चुअली मिसप्रिंटिंग है, ये डाइवर्जेंट नोजल को हम डिफ्यूजर कहते हैं। ये अगर सबसोनिक फ्लो इनलेट पे तो डिफ्यूजर। नाउ कन्वर्जेंट नोजल इस तरह है, तो इन दोनों को कंबाइन करने से हम सुपरसोनिक नोजल और डिफ्यूजर बनाते हैं। यानी इनलेट पे वेलोसिटी सबसोनिक हो तो थ्रोट पे वेलोसिटी सोनिक हो जाएगी, और उससे आगे डाइवर्जेंट पार्ट होगा तो सुपरसोनिक वेलोसिटी हो जाएगी। हाँ, अब ये जो है हम आपके सामने ये एक पाइप दिखाया गया। इस पाइप के अंदर नोजल फिट है, ये 1-2 सेक्शन है नोजल का, और इनलेट ऑफ द नोजल पे P1 प्रेशर है। आउटलेट पे एक वाल्व लगा हुआ है और वो जो बैक प्रेशर को मेंटेन करता है। अगर इसको बंद कर दें तो बैक प्रेशर बढ़ जाएगा, इसको खोल दें तो बैक प्रेशर कम हो जाएगा। तो इनलेट पे एक बहुत बड़ा कोई टैंक है, हाई प्रेशर की गैस इसमें आ रही है, तो यहाँ से ये नोजल की बिगिनिंग है, ये नोजल का एंड है, ये सिर्फ कन्वर्जिंग नोजल है। तो कन्वर्जेंट नोजल को हम इस तरीके से ऑपरेट करते हैं किसी लेबोरेटरी में जब उसको टेस्ट करते हैं। तो अगर हम स्ट्रेट पाइप रखें, वो जो स्ट्रेट पाइप में से फ्लो करें A1 = A2, और तो उसमें सोनिक फ्लो हो जाएगा जब वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब इन दोनों को मिलाने से, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप को मिलाने से हमारे पास कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट शेप ये बनती है। इनलेट पे एक टैंक है और वेलोसिटी एट द इनलेट इज ऑलमोस्ट 0 और वेलोसिटी एट थ्रोट इज मैक्सिमम, यानी वेलोसिटी ऑफ साउंड
velocity of exit is supersonic. So this is convergent divergent nozzle or supersonic nozzle. और ये नहीं है कि nozzle पाइप ही हो, nozzle की शक्ल राउंड हो, ये आपको दिखाया गया है, ये किसी भी शेप का हो सकता है, पाइप सर्कुलर डायकप सर्कुलर शेप का भी हो सकता है, क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर भी हो सकता है, पाइप का नोजल का क्रॉस सेक्शन जो है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और स्क्वायर भी हो सकता है। तो आपको लेफ्ट साइड पे जो ए में दिखाया गया ये कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल है और ये सर्कुलर पाइप है। बी में जो दिखाया गया ये आपके रिएक्शन टरबाइन के ब्लेड्स, ये यहाँ से स्टीम या गैस इंटर हो रही है, कन्वर्जिंग नोजल बन गया, यहाँ तक ये थ्रोट है, उससे आगे आप देख रहे हैं इनलेट यहाँ ये ज्यादा था, कम होते होते यहाँ कम से कम हो गया और उसके बाद फिर एरिया बढ़ना शुरू हो गया। तो आप दो ब्लेड्स के दरमियान का जो चैनल है वो रेक्टेंगुलर शेप का बनता है, एक नाली बनती है एक, और इस नाली और रेक्टेंगुलर चैनल को हम कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नोजल कह सकते हैं। सो एनालिसिस ऑफ नोजल्स एंड डिफ्यूजर। तो नोजल की डेफिनेशन ये हुई कि नोजल इज अ डक्ट ऑफ स्मूथली वेरिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया and it is steadily which is steadily flowing fluid can be made to accelerate by pressure drop along the duct. Nozzle की definition ये है कि वो smoothly varying area है। अब इसमें ये नहीं लिखा है कि क्रॉस सेक्शन ये कन्वर्जिंग होगा डाइवर्जिंग, कोई भी पाइप जो वेरिंग एरिया है स्मूथली आहिस्ते आहिस्ते, एक एब्रप्ट चेंज नहीं करते एरिया में, आहिस्ते आहिस्ते स्मूथली चेंज करें, एरिया कम करते जाएं या ज्यादा करते जाएं, तो उससे आपको जो है अगर प्रेशर ड्रॉप मिलेगा एंड पे और वेलोसिटी इंक्रीज मिलेगी। नाउ डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजर ये है कि व्हेन अ फ्लूइड इज एक्सेलरेटेड इन अ डक्ट causing a rise in pressure along the stream, then the duct is called a diffuser. अब वो अगर सबसोनिक है तो आपको बता दिया कि एरिया इंक्रीज होगा, अगर सुपरसोनिक है तो एरिया कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बनाना पड़ेगा, तो उससे आपको सुपरसोनिक डिफ्यूजर जो डाइवर्जिंग पार्ट है वो भी नोजल का काम करेगा और कन्वर्जिंग पार्ट भी नोजल का काम करेगा। कन्वर्जिंग में सबसोनिक फ्लो होगा, थ्रोट के ऊपर सोनिक हो जाएगा और सोनिक के बाद डाइवर्जिंग पार्ट में सुपरसोनिक होगा, तो ये पूरा नोजल होगा, ये डिफ्यूजर उसमें नहीं होगा। हाँ, अगर इनलेट पे एरिया इंक्रीज हो रहा है, डिफ्यूजर है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो डिफ्यूजर कहलाएगा। नाउ एप्लीकेशंस ऑफ नोजल्स के बहुत सा इस्तेमाल है, यूज कहाँ होता है उसको एप्लीकेशंस कहते हैं। नोजल्स आर यूज्ड वेयर हाई वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम यानी कि फ्लो ऑफ फ्लूइड इज रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी जब चाहिए हो फ्लूइड की, वो हमें कहाँ चाहिए होती है? टरबाइन के इनलेट पे चाहिए होती है, जेट इंजन में चाहिए होती है, या कोई वॉशिंग प्रोसेस करना है हाइड्रोलिक या एयर से, वहाँ चाहिए होती है। स्टीम टरबाइन्स, गैस टरबाइन्स, पैसेजेस ऑफ रिएक्शन टरबाइन ब्लेड्स, जेट इंजन्स, रॉकेट्स, फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो एयर कंडीशनिंग के डक्ट्स का फ्लो रेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी वो इंस्ट्रूमेंट में दरअसल एक नोजल इस्तेमाल होता है। उस नोजल के ऊपर मेजरिंग यानी प्रेशर और टेम्परेचर और वेलोसिटी मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, पीटो ट्यूब वगैरह लगी होती है, प्रेशर गेजेस लगी होती है और उसको वेलोसिटी मीटर लगा होता है, तो इसको अनेमोमीटर कहते हैं। तो आजकल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए, इन तमाम एनालॉग को सिग्नल्स को वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं और यू कैन रीड द रिजल्ट एंड फाइंड आउट द फ्लो रेट थ्रू अ डक्ट। सो इस फ्लो रेट का मकसद डक्ट को बैलेंस करें, इसको बैलेंसिंग प्रोसेस कहते हैं। उसके लिए वहाँ इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं कि किस जगह से कितना फ्लो रेट होना चाहिए, कितना प्रेशर होना चाहिए, वो मेंटेन किया जाता है बाई क्लोजिंग और ओपनिंग द वाल्व्स और डिफ्यूजर। नाउ एप्लीकेशन ऑफ डिफ्यूजर्स आर सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हमने अभी पढ़ चुके हैं कि इंपेलर के बाद डिफ्यूजर होता है जो हाई स्पीड हाई वेलोसिटी को लो वेलोसिटी में कन्वर्ट कर प्रेशर इंक्रीज करता है। कुछ प्रेशर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से इंक्रीज होता है इंपेलर के सर्कुलर वेलोसिटी की वजह से, और बाकी प्रेशर डिफ्यूजर में एरिया इंक्रीज होने की वजह से इंक्रीज होता है। रैम जेट हमने पढ़ा है अभी, रैम जेट में जो है डिफ्यूजर का इस्तेमाल है इनिशियली वेलोसिटी को कम करने के लिए, क्योंकि सुपरसोनिक वेलोसिटी होती है इनलेट पे, तो उसको हम कम करते हैं ताकि फ्लेम को स्टेबलाइज किया जा सके। पैसेजेस ऑफ एक्चुअल कंप्रेसर ब्लेड
एक्चुअल प्रेशर में कन्वर्जिंग एक्चुअल कंप्रेसर जो है उसमें यानी उसमें ब्लेड के अंदर से जब गुजरता है वो भी रिएक्शन टाइप के ब्लेड होते हैं, अगर वो एक्चुअल फ्लो है तो वहां से भी प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन उसके बाद स्टेशनरी जो वेन्स होती हैं उसमें डिफ्यूजिंग चैनल बनाए जाते हैं, उससे भी मजीद प्रेशर इंक्रीज होता है. Now the results of the thermodynamic analysis of nozzles and diffusers. Now here I will summarize one by one all the equations required to design a nozzle. So the analysis is performed on one-dimensional steady flow. That means an average uniform velocity of fluid across a section is assumed. So ये one-dimensional flow से पहले इसमें velocity सिर्फ longitudinally along the pipe change हो रही है, लेकिन क्रॉस सेक्शन में चेंज नहीं हो रही है, उसको हम वन डायमेंशनल फ्लो करेंगे. तो फ्लूइड इज फ्लो इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक, यानी हीट ट्रांसफर नहीं हो रही और इंटरनल फ्रिक्शन नहीं हो रही, तो दैट इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक या आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा. दैट मींस हीट ट्रांसफर एंड फ्रिक्शन इज एब्सेंट. अगर हम ये सारी चीजें अभी से इंक्लूड करें और डिजाइन करने चले तो नोजल कभी डिजाइन नहीं हो सकती. तो हम आइडियली एक आइडियल कंडीशन में नोजल डिजाइन करते हैं, फिर प्रैक्टिकली वो जो उसकी एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस से मल्टीप्लाई करके उसकी रियल वैल्यूज हमें मिल जाती है. नाउ द अबव assumptions आर आइडियल एंड रियल assumptions कैन बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन मेजर्ड वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स एंड एफिशिएंसी. एफिशिएंसीज जब वो चीज बन जाती है और यूज हो जाती है, चलने लगती है, उसको मेजरमेंट लेकर इंस्ट्रूमेंट के जरिए उसकी एफिशिएंसी मालूम करते हैं, तो उससे मल्टीप्लाई करके हम आइडियल वैल्यूज को उससे मल्टीप्लाई करके रियल वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं. नाउ मेथोडोलॉजी ऑफ एनालिसिस इज बेस्ड ऑन these steps. The first law of thermodynamics is applied to steady flow, that is SFE is required. The law of continuity under steady flow is required, that is m dot is equal to AC upon V, any area into velocity divided by specific volume. Yeah, density multiplied by area into velocity rho AC. So उसके बाद the nozzle shape is determined by calculating the area per unit mass flow rate. So per unit mass flow rate m dot को 1 kg ले लें, 1 kg per second, then उससे जो area calculate होगा वो उससे आपको nozzle की shape आ जाएगी. तो area होगा तो जाहिर है आप उसका diameter वगैरह calculate कर लेंगे. It depends on the specific volume and velocity of the gas. So बाकी पीछे सिर्फ C और V रह जाते हैं, तो C velocity change करने से और specific volume change करने से area change होगा. So this is how mass flow rate changing करते हैं. This is how nozzle is designed. Now velocity of the gas or steam at exit of the converging nozzle is C2 meter per second, is determined by applying steady flow energy equation. Steady flow energy equation वो ये energy in is equal to energy out. Energy stored in the system is zero, so energy in is equal to energy out. So जब energy in is equal to energy out और velocity at the inlet C1 is approximately zero, C1 is negligible. तो जब आप इसको energy equation में डालेंगे, energy in U plus यानी कि H1 plus V square upon 2 यानी kinetic energy plus potential energy is equal to right hand side H2, तो आपको ये चीज मिलेगी. So C2 is equal to under root 2 H1 minus H2, यानी potential energy kinetic energy change negligible है, zero है, तो then velocity at the exit will be under root 2 delta H. Enthalpy drop. अगर steam है तो आप यही equation use करेंगे under root 2 delta H, H2 minus H1 enthalpy drop. लेकिन अगर ये ideal gas है, मसलन air है, तो यहाँ आप H को आप CPT लिख सकते हैं, लेकिन steam के लिए H is not equal to CPT, इसलिए वहाँ H ही रहेगा. फिर सवाल ये कि steam का H कहाँ से आएगा, तो उसके लिए आपको जवाब मैंने दिया है कि HS चार्ट यूज करेंगे, मोलिये चार्ट यूज करेंगे. इसकी सॉफ्ट कॉपी मैंने आपको भेज दी, इसकी हार्ड कॉपी आपके टेबल पे होनी चाहिए. स्टीम टरबाइन गैस स्टीम टरबाइन के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, स्टीम नोजल की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको मोलिये चार्ट चाहिए. सो गैस के लिए नहीं चाहिए कोई भी चार्ट, सिर्फ टेम्परेचर मालूम होना चाहिए. एब्सोल्यूट टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय Cp इज द एंथैल्पी. सो इसलिए 2Cp under 2Cp delta T in case of ideal gas is equal to velocity at the outlet. Now
expansion of steam from state 1 to state 2, we use this formula also. हमने isentropic flow के लिए चैप्टर शुरू के चैप्टर में दूसरे तीसरे चैप्टर में ये चीज हमने डिराइव की है. H1 minus H2 is equal to kappa 1 kappa minus 1, where kappa is equal to isentropic index Cp on Cv of steam. So P1 V1 minus P2 V2 is equal to C2 square minus C1 square by 2. By using isentropic relations, by using isentropic relations of P, sorry मैंने एक बात कही थी, ये steam के लिए kappa पर kappa minus 1 यूज होता है, जबकि आइडियल गैस यानी एयर के लिए gamma upon gamma minus 1 यूज होता है. गामा अपन गामा माइनस 1 और कापा पर कापा माइनस 1 वो इन दोनों आइसेंट्रोपिक इंडेक्स हैं, एक आइडियल गैस के लिए कि दूसरा स्टीम के लिए. लेकिन आइडियल गैस के लिए जो गामा यूज होता है दैट इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, लेकिन स्टीम के लिए कापा यूज होता है, वो उससे डिफरेंट इसलिए रखा गया है that this is not equal to Cp upon Cv. This is just approximate isentropic index of steam. तो ये था about nozzles. Now उसके बाद F step, ये all steps हैं. By using isentropic relations of Pt, Cp and gamma, velocity of ideal gas is calculated in terms of pressure ratio at the given section. तो इनलेट पे सेक्शन 1 है तो आउटलेट पे x1, x2, xy कोई भी सेक्शन लेते जाए इक्वल डिस्टेंस पर, तो आपको एरिया मुख्तलिफ फासले पे पाइप के एरियाज मिलते जाएंगे, उसकी मदद से आप पाइप की शेप यानी नोजल की शेप डिजाइन कर लें. Now critical conditions are those where velocity is maximum, cross section area is minimum. उसको throat कहते हैं जहाँ velocity maximum हो, और that maximum velocity is equal to velocity of sound. ये velocity of sound maximum velocity क्यों है? इसलिए कि sound वो चीज है जिससे pressure हम feel करते हैं. हम जो आवाज अब आप तक आ रही हो, मेरे sound box में, मेरे गले में एक sound box है, वहाँ से pressure create होता है, pressure wave, और वो आप तक पहुँचती है. और अगर वो वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर हो जाए तो वापस आवाज मेरे तक नहीं आएगी. अगर आप वहाँ बोलना भी चाहें तो आपकी आवाज मेरे तक नहीं आएगी. तो इसी तरह नोजल में से अगर थ्रोट में मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो जाए, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो थ्रोट से आगे और उसका जो अदर पार्ट है, डाइवर्जिंग पार्ट है, अगर प्रेशर या डाउन हो जाए, बैक प्रेशर है यानी डिस्चार्ज हो गया, तो वहां से वापस थ्रोट की तरफ कोई प्रेशर कितना भी आप नीचे करते रहे, वो उसका असर, उसका यानी कंप्रेशन वेव पीछे की तरफ ट्रेवल नहीं कर सकती, क्योंकि फ्लूइड ऑलरेडी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ट्रेवल कर रहा है और प्रेशर वेव भी वेलोसिटी ऑफ साउंड से ट्रेवल करती है. तब दो फ्लूइड एक ही डायरेक्शन से, ऑपोजिट डायरेक्शन से, एक ही स्पीड से मूव कर रही हो तो एक जगह खड़ी हो जाती है. इसलिए डाउनवर्ड जो प्रेशर ड्रॉप होगा, प्रेशर चेंज होगा, वो उसका कोई असर नहीं होगा वेलोसिटी पे, इसलिए वो मैक्सिमम वेलोसिटी. Now critical conditions are those velocities maximum in the convergent nozzle, area is minimum area in the divergent nozzle, throat is the minimum area. Now the convergent divergent is called choke when velocity at throat reaches acoustic velocity. Sound velocity को हम acoustic velocity भी कहते हैं. तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अंग्रेजी सीखें, अंग्रेजी इस्तेमाल करें. Acoustic velocity, sound velocity, same. Now, properties of the throat of a convergent divergent choke nozzles are denoted by subscript C. مثلا TC, PC, CC. That means C for critical, for acoustic. A for acoustic, C for critical. तो जहाँ critical होती है वहाँ acoustic velocity. Now, to calculate critical pressure ratio PC upon P1 at minimum area, the minimum area को throat कहते हैं अगर convergent divergent nozzle है. तो maximum velocity relation in terms of pressure ratio is differentiated and equal to 0. When we differentiate, we first calculate critical pressure ratio in terms of properties, pressure and temperature, and then differentiate with respect to pressure ratio, यानी कि PC upon P1, and put it equal to 0. In that case, वो जो area calculate होगा या प्रेशर वो क्रिटिकल यानी मिनिमम थ्रोट होगा या टेम्परेचर कैलकुलेट होगा, थ्रोट वाला टेम्परेचर होगा. सो TC अपॉन T1 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में
इसका ये लॉ है PC upon T1 is equal to PC upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma, ये आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं। और CC velocity of sound is equal to under root gamma PV, under root gamma PV ये हम प्रूव कर चुके हैं Thermodynamics chapter 3 में। This is equal to under root gamma RT। So अगर acoustic velocity आइडियल गैस की मालूम करनी है तो ये फॉर्मूला अंडर रूट गामा RT, और अगर स्टीम की मालूम करनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड तो अंडर रूट K RT होगा। अगेन K फॉर स्टीम इज इक्वल टू 1.4 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू CP अपॉन CV, बट इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू isentropic index of steam process. Now the superheated steam with negligible velocity at inlet to a convergent divergent nozzle, critical velocity will be calculated by delta H, हम पहले बता चुके हैं, अंडर रूट 2 डेल्टा H। और इसको मल्टीप्लाई कर, याद रखो इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1000 से, तो इसलिए कि ये अमूमन एंथैल्पी किलो जूल्स पर केजी में होती है, तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर में नहीं होती, तो इसलिए जब वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में और एंथैल्पी किलो जूल्स में, तो ये इस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू है एंथैल्पी की, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल में कन्वर्ट करना होगा। So CC is equal to under root PC into BC or P2 upon PC upon P1. These are isentropic laws. 2 upon kappa minus 1 raised to kappa upon kappa minus 1. So अब आपको देख रहे हैं कि प्रेशर रेशो थ्रोट के अंदर प्रेशर रेशो का यानी मैक्सिमम प्रेशर रेशो PC अपॉन P1, क्रिटिकल, इसको क्रिटिकल प्रेशर रेशो भी कहते हैं। तो क्रिटिकल प्रेशर रेशो के लिए आपको कुछ भी जरूरत नहीं सिवाय कापा के, कापा या गामा। अगर आइडियल गैस है तो गामा और स्टीम है तो कापा, तो ये सिर्फ कापा की वैल्यू मालूम है। स्टीम की कापा वैल्यू 1.3 है, और अगर ये गामा है और एयर है तो इसकी वैल्यू 1.4 है। सो आपको सिर्फ 1.4 1.3 याद रखना है, और ये फार्मूला, तो क्रिटिकल प्रेशर रेशो इक्वल टू 2 अपॉन कापा प्लस 1, तो ये आपने कैलकुलेट करके रख ली है, तो उसकी वैल्यू आप फिक्स करके 0.554 समथिंग लाइक दैट याद, डिपेंडिंग कापा कितना लिया। नाउ P नॉट स्टैग्नेशन प्रेशर इज इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर प्लस डायनामिक प्रेशर, ये डेफिनेशन है टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर को हम स्टैग्नेशन प्रेशर भी कहते हैं। दिस इज इक्वल टू स्टैटिक प्रेशर प्लस रो C स्क्वायर अपॉन 2। ये एक अलग टॉपिक है, इस पे हम जो है ना मजीद अभी टाइम खत्म होने वाला है, खत्म करते हैं, और बाकी पॉइंट S, स्टेप S जो है नोजल डिजाइन का, यहाँ से शुरू होकर हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, और ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी है। तो अभी तक ये चल रहा है, मेरे ख्याल में चला लेते हैं, टाइम हमें मिल रहा है। जूम आप हैं? हेलो, आप सुन रहे हैं? हाँ, अभी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ जूम तो अभी, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है, इसको हम अगर हो सके तो कर लेते हैं। सो चलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, खामखा जल्दी कुछ नहीं करना। ओके, आप सुन नहीं रहे, आवाज नहीं दे रहे, क्या बात? आ रही है आवाज सर? आप आ रही है सर, सुन रहे हैं। चलो अभी बंद करते हैं, क्योंकि जूम वालों ने काफी देर पहले मैसेज किया था कि पता नहीं काफी 5-6 मिनट हो गए,